Hello students, myself Deepak Zade. Today in this lecture we'll start with a new topic, that is centroid. Centroid of laminas or maybe plane surface, means which is having negligible thickness. A piece of paper, rectangular paper. So this one is what? A piece of paper hai, right? If we'll see in the direction, what is the thickness? Thickness is negligible. That means for any plane surface what will get? फर्स्ट सेकंड टू डायमेंशन है, एक डायमेंशन एक्स है, सपोज लाइक दिस राइट. एक डायमेंशन एक्स है, दूसरा डायमेंशन क्या है? वाई है. दैट मीन्स विल गेट व्हाट? ओनली एरिया. ये थिकनेस क्या हुआ? निग्लिजिबल. पैरेलल टर्म्स यू ऑलरेडी स्टडीड. वन इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, अदर वन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये जो टर्म्स है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अप्लीकेबल टू सॉलिड बॉडी. सॉलिड बॉडी मीन्स हैविंग ऑल थ्री डायमेंशन. सपोज स्पीयर है, ऐसा एक स्पीयर है, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा 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 पूरा ऐसा स्पीयर है. इसका सेंटर ऑफ मास किधर रहता है? 11th-12th में आपने सीखा है, उसके सेंटर में रहता है, राइट. हाउ विल डिफाइन दिस टर्म सेंटर ऑफ मास? इट इज अ पॉइंट थ्रू विच टोटल mass of the body is assumed to be concentrated and is located normally at geometric center. ऐसी एक parallel term है center of gravity. It is a point, imaginary point in a solid body through which total weight of the body is assumed to be concentrated. Then how will define centroid? Centroid is defined as, can you define like this? A plane surface के लिए रहता है. Means centroid is defined as a point in the lamina or surface through which total area of the lamina is assumed to be concentrated. Because plane surface के लिए volume नहीं रहता है, that means it is considered as massless. It is considered as what? Weightless. Clear? How will define centroid? Centroid is defined as a point in the lamina through which total area of the lamina is assumed to be concentrated. Chalo, let's try to this definition. Define this term centroid. How will define centroid? Centroid is defined as, centroid is defined as a point, as a point in the lamina, point in the lamina through which total area of the lamina, total area of the lamina is assumed to be concentrated or supposed to be concentrated. It is assumed to be concentrated, right? Assumed to be concentrated. क्या लिखा है? Centroid is defined as a point in the lamina through which total area of the lamina is assumed to be concentrated. Where this position of centroid always lies? Any lamina if you take, it lies at geometric center of lamina. For example, suppose this one is a lamina. Simple lamina I am representing here. ये जो lamina है, this is what? Rectangular lamina, right? In this lamina, one dimension is B, other dimension is say height h and its base is B. Geometric center में ऐसा represent कर सकते हैं क्या? Proper सुनो, you will feel very easy in topic, right? Listen carefully each and everything. ये जो center है ना, center of this rectangle, geometric center is what? Centroid. Now dimensions if you check, right? This dimension means what? Base of rectangle. This dimension is what? Base. ये जो dimension है से, this one is what? Height of rectangle. This is what? Height. Now this point should be at what distance? ये geometric center है, right? ये dimension अगर B है, means this dimension must be how much? तो ये आप बोलेंगे सर ये तो इजी, इसका हाफ होना चाहिए, राइट? करेक्ट ना? ऐसे व्हाट इज वर्टिकल डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस आना चाहिए वर्टिकल? फ्रॉम इट्स बेस ये डायमेंशन कितना आना चाहिए, हाइट h/2.
इधर तक कुछ प्रॉब्लम? एट ज्योमेट्रिक सेंटर. नाउ व्हेन वी विल राइट एज अ आंसर वेयर इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑलवेज विल मेजर फ्रॉम reference axis. Reference axis means what? Reference axis x and y. अभी these x and y axis must be given in problem. Suppose this axis is x, ये जो axis है this one is what? Axis y. Now distance of this point, say if I'll represent here, ये जो पॉइंट है इट्स डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट, राइट. तो ये एक लाइन रिप्रेजेंट किया, कैन यू से ये आपका डिस्टेंस हो गया, राइट, विच इज रिप्रेजेंटेड हियर b/2. बट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका है? सेंट्रॉइड का है. किधर से मेजर किया है? y एक्सिस से मेजर किया है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? x bar. X bar means what? Always horizontal distance of centroid. From where? From y axis. ऐसे ये centroid का vertical distance from x axis distance vertical है, therefore it is written as what? Y bar. Means ये जो दो terms है, these are very important. Always whenever you solve any problem, you concentrate कि अब x bar क्या रहता है? It is what? व्हाट? बोलो फटाफट, कुछ आवाज नहीं आ रहा है. हॉरिजॉन्टल. विच डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल. अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा किसका? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड. फ्रॉम वेयर? किधर से मेजर करना है? फ्रॉम वाई एक्सिस. फ्रॉम वाई एक्सिस, करेक्ट. चलो, वाई बार इज व्हाट? वाई बार इज वर्टिकल डिस्टेंस. विच डिस्टेंस? वर्टिकल डिस्टेंस. किसका वर्टिकल डिस्टेंस है? ये सेंट्रॉइड का, राइट. वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वेयर? तो इट इज फ्रॉम विच एक्सिस? एक्स एक्सिस. क्लियर? दैट मीन्स एज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नाउ फॉर दिस केस आपका एक्स बार जो है कम्स आउट टू बी व्हाट? ये एक्स बार मीन्स b/2. एक्स बार इज व्हाट? b/2. y bar is what? h/2. ये ना y bar is what? h/2. अभी ये जो x and y axis है are such that आपका जो लैमिना है इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो सेंट्रॉइड आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसके लिए x बार y बार हुआ पॉजिटिव. बट इन केस एक्स एंड वाई एक्सिस आर गिवन सच दैट मे बी आपका सेंट्रॉइड सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, फोर्थ में आ सकता है, तो आपका एक्स बार वाई बार कुछ प्लस माइनस होने का चांस है, राइट. सेकंड में जाता है तो एक्स क्या रहता है, सबको पता है ना. देखो एक सिंपल फिगर निकालता हूँ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रहता है? प्लस प्लस. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव है, राइट. सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या रहता है? निगेटिव. y क्या रहता है? पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x निगेटिव, y ऑल्सो निगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है. मीन्स ऑलवेज कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अननेसेसरी विल गेट रॉन्ग आंसर्स ओनली ड्यू टू प्लस माइनस. आपका सेंट्रॉइड कहाँ है? दैट इज इंपॉर्टेंट. विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव. सेकंड में रहेगा तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में सेंट्रॉइड आता है तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव. फोर्थ में आएगा तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. क्लियर? एक्स बार मीन्स व्हाट? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई बार क्या रहता है? वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एक्सिस. अभी ये जो x बार y बार निकाला है फॉर दिस केस b/2 एंड h/2, दिस इज फॉर अ सिंपल कॉम्पोनेंट. विच कॉम्पोनेंट? तो दिस वन इज अवर फर्स्ट कॉम्पोनेंट वेयर दिस कॉम्पोनेंट इज व्हाट? रेक्टेंगुलर लैमिना. मीन्स बिफोर ड्राइंग दिस फिगर ये सब नोट किया रहेगा आपने, है ना. आई एम इरेजिंग दिस वन. ये जो है इसका हेडिंग क्या आएगा? ये फर्स्ट पार्ट है. हाँ, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड. पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड फॉर ये है सिंपल कंपोनेंट्स. फॉर सिंपल
components, जिसमें ये है नंबर 1 and is what? Rectangular lamina. Lamina means what? Surface, rectangular piece of paper having negligible thickness. First component क्या हुआ? Rectangular lamina. Centroid is located where? B by 2 and H by 2. Like this we have to discuss how many components. देखो एक rectangle, right angle triangle, isosceles triangular lamina, हो गए 3 rectangle, right angle triangle, isosceles triangular lamina. Then circular lamina 4. Fifth one semicircular lamina. Fourth क्या हुआ? Circular. Then semicircular, हो गए 5. Then quarter circular lamina 6 and 7th one is what? Sector. इस सब components डिटेल में first we'll discuss, so that when we'll combine these simple components and we'll find out position of centroid, because in exam what is asking is position of centroid of composite lamina. Composite lamina means what? Which consists of number of simple components. Maybe 3 रहेगा, 4 रहेगा, किधर 2 रहेगा, any number of components. Mostly 3-4 component आता है, sometime may exceed up to 5. So first we'll discuss what is our flow of discussion in this lecture. First we'll discuss all 7 components. Then we'll see how to find out position of centroid of composite lamina. We'll derive some formula and then we'll start solving some problems. Okay, done? चलो proceed now. Each component will discuss in detail. इधर तक कुछ प्रॉब्लम ये समझ में आ गया ना? देखो ये सब मैं भी रेस करता हूँ. अभी ये तो एकदम सिंपल लग रहा है, राइट? एग्जाम में कर मिल जाएगा तो सब रॉन्ग आंसर आता है. उसका रीजन क्या है? इसलिए ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, राइट? कि ये मेरा y एक्सिस है. दिस इज व्हाट? ये y एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस y. ये क्या है? रेफरेंस एक्सिस ये x. नाउ रेक्टेंगुलर लैमिना ऐसा कुछ दिया है, ये आपका रेक्टेंगुलर लैमिना है, जिसका डायमेंशन अगर देखूंगा तो ये है कुछ 6 मीटर्स एंड ये जो है दिस वन इज फ्रॉम x एक्सिस ये दिया है 5 मीटर. ऐसे ये जो डायमेंशन है दिस इज गिवन एज व्हाट? 8 मीटर एंड दिस इज गिवन एज व्हाट? ये 4 मीटर है. मीन्स सेम लैमिना है रेक्टेंगुलर लैमिना. You know position of centroid is what? B by 2 and x by 2. But मैंने इधर लिख के दिया था x बार क्या रहता है? x बार is what? Horizontal distance of centroid from y axis and y बार क्या रहता है? Vertical distance of centroid from x axis. समझ में आ रहा है ना? चलो इसका आंसर बताओ. आप बोलेंगे हाँ ये देखो ये सर सेंट्रॉइड हुआ, ये आपका 4 मीटर है, ये 3 मीटर हो जाएगा, x बार 4 मीटर, y बार 3 मीटर. आंसर हुआ रॉन्ग. क्यों रॉन्ग हुआ? x बार जो रहता है वो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है. x बार रहता है आपका विच डिस्टेंस? सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. ये x बार है. ये थोड़ी ना आपका 8 का हाफ 4 मीटर ऐसा थोड़ी आएगा. ये तो ये पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम दिस एज 4 मीटर है. बट x बार क्या हो जाएगा? हाँ ये डिस्टेंस मेजर करना है तो आपका ये ऑलरेडी 4 है. ये एज y एक्सिस पे नहीं है ना, किधर है? लेफ्ट साइड में 4 मीटर. चलो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 + 4 मीन्स x बार हुआ 4 + 4 मीन्स हाउ मच? 8 मीटर. समझ में आया कि नहीं? किधर भी प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट करो, ठीक है? अकॉर्डिंगली आई विल प्लान अदर लेक्चर कि किधर प्रॉब्लम होता है, राइट? चलो y बार कैसा मेजर करेंगे? y बार इज विच डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड. विच डिस्टेंस? y बार मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस. इसका वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स ये वाला, राइट? किधर से? x एक्सिस से. मीन्स आपका ये डिस्टेंस y बार हुआ ना. दिस वन इज व्हाट? y बार. अभी ये 4 है, हाइट आपका 6 है तो ये डायमेंशन तो 3 हो जाएगा ना इसका हाफ, राइट? ये 3 मीटर, ये जैसा 4 मीटर हुआ ना. b by 2 8 बेस हो गया ना, ये 4 हुआ और ये 6 है आपका हाइट तो ये कितना हुआ? h by 2 मीन्स 3. बट ये y बार नहीं है, ये इधर 5 भी है मीन्स ये y बार क्या हो जाएगा? पहले 5
प्लस वॉट 3, 5 प्लस 3 कितना हुआ 8 मीटर। कुछ समझ में आया? आपको एक ही ध्यान में रखना है, जो x बार y बार आप निकालेंगे वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, रेफरेंस एक्सिस से। x बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो किधर से मेजर करेंगे, ऐसा वर्टिकल y एक्सिस से इधर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट। वर्टिकल डिस्टेंस किधर से मेजर करेंगे, तो ये x एक्सिस इधर से वर्टिकल, मीन्स x एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना है वर्टिकल। क्लियर? अभी इसका आंसर अगर मैं लिखूं तो ये x बार क्या हो गया 8 मीटर, y बार क्या हुआ, ये भी 8 मीटर हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके लिए x बार y बार हो गया पॉजिटिव। ओके, अभी सपोज मैं एक रेक्टेंगुलर लैमिना, ये क्वाड्रेंट चेंज हो गया, इधर डाल दिया। इसका जो हॉरिजॉन्टल मीन्स इसका जो बेस है, ये सपोज आपका 10 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये कुछ 6 मीटर है, राइट। बेस कितना हुआ 10, 6 मीटर हो गया y एक्सिस से h का डिस्टेंस। इसका जो हाइट है ये डाल दिया इधर, हाउ मच 6 मीटर, और ये जो है ये डिस्टेंस है आपका 4 मीटर। चलो किसका किसका आंसर आया कमेंट करो फटाफट, कितना आंसर आया x बार y बार का, आ गया? बताओ, आपको सेंट्रॉइड सेंटर में आता है, यस। तो सेंट्रॉइड जो है इसके लिए एक लाइन ऐसा रिप्रेजेंट किया, एक ऐसा रिप्रेजेंट किया, राइट। आपको डिस्टेंस किसका चाहिए, सेंट्रॉइड का। विच डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मीन्स ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, ये ना इसका डिस्टेंस y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो जाएगा x बार। अभी आपको ये पता है कि ये 10 है, तो आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, बट इसके राइट में कितना है 6, मीन्स ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 है ना, मीन्स क्या हुआ 11 मीटर। डिस्टेंस करेक्ट है, साइन सेंट्रॉइड किधर है, लेफ्ट साइड में, मीन्स x बार आपका क्या हो जाएगा निगेटिव, ये कैसा आएगा -11। चलो y बार बताओ, तो y बार देखो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये तो 6 का हाफ मीन्स 3 मीटर, ये सबको आएगा, राइट। और ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस किधर से मेजर करना है, x एक्सिस से, तो क्या हुआ y बार कितना आएगा, तो आपको ये 4 मीटर है, उसके ऊपर 3 है, मीन्स कितना हुआ 4 प्लस 3, तो क्या हुआ 7 मीटर। सेकंड क्वाड्रेंट है, y बार इज नॉट पॉजिटिव, मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, x बार क्या आया, x बार क्या आया -11 मीटर, एंड y बार क्या आया, आपका आया 7 मीटर। मुझे लगता है इतना तो आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रेक्टेंगल डालेंगे तो x बार y बार दोनों नेगेटिव आएगा, फोर्थ में सेंट्रोइड आएगा तो x बार पॉजिटिव आएगा, y बार नेगेटिव आएगा। ये होगा आपका फर्स्ट कॉम्पोनेंट रेक्टेंगल, राइट। चलो नेक्स्ट, अभी इसमें और एक एडिशनल पॉइंट ऐसा है कि सुनो, ये आपका जो लाइन है b/2 h/2, राइट, ऐसे है ना, ये मैंने ऐसा लाइन बनाया, कैसा लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, इसको बोलते हैं एक्सिस लाइन। एक्सिस लाइन अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा रिप्रेजेंट कर, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट। तो मैंने इधर लॉन्ग शॉर्ट डाला, इधर भी लॉन्ग शॉर्ट डाला, बिकॉज ये बाइसेक्टर है, बी डायमेंशन को डिवाइड किया ना b/2 में, इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ कि नहीं, इज व्हाट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। When any lamina is symmetrical about two axes, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सेंट्रोइड होता है। कोई भी लैमिना अगर एक एक्सिस पे, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स आपका सेंट्रोइड सेम लाइन पे आएगा, सेंट्रोइड लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हेन लैमिना इज सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस। नोट करो क्या डिस्कस किया, इफ any lamina is symmetrical about one axis, then centroid lies
ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पक्का ध्यान में रखो, सॉल्यूशन एकदम इजी हो जाएगा प्रॉब्लम्स का। इफ एनी लैमिना इज सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस, सेंट्रोइड लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इफ एनी लैमिना इज सिमेट्रिकल अबाउट टू एक्सिस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड होता है। ऐसा भी लैमिना मिल सकता है, इधर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मोर देन 2 भी आएगा, 3, 4, 5 सर्कुलर लैमिना रहेगा, तो ऐसा सर्कुलर लैमिना है ना। वर्टिकल भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल मीन्स एनी डायमीटर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइनेड, एनी एंगल, कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा तो किधर आता है सेंट्रॉइड, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मीन्स इधर लिखो, यस, वापस एक नोट हुआ, ये दूसरा, इफ एनी लैमिना इज symmetrical about more than one axis, then what, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, right, point of intersection of axis of symmetries represents what it represents, position of centroid। समझ में आया क्या? Any lamina is symmetrical about more than one axis, then point of intersection of axis of symmetries represents what, position of centroid। जैसा इधर एक vertical axis of symmetry है, एक horizontal है, तो point of intersection हुआ आपका सेंट्रॉइड, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड। तो अभी तक अपन ने क्या किया है, एक कंपोनेंट हुआ रेक्टेंगुलर। अभी क्या करेंगे, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट। क्लियर? 7 कंपोनेंट करना है, बाद में डेरिवेशन करना है, उसके बाद अपना थ्योरी पार्ट जो बेसिक कंसेप्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा, देन वी स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो एक कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, and then next components will add in second lecture। ओके, ये समझ में आया ना। x बार क्या रहता है, नोट किया था ना, x बार इज व्हाट, बोलो फटाफट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस। बोलो, x बार इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस। y बार क्या रहता है, बोलो फटाफट, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस। क्या रहता है y बार, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस। करेक्ट। इफ लैमिना इज सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस, सेंट्रॉइड लाइज वेयर, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लैमिना इज सिमेट्रिकल अबाउट मोर देन वन एक्सिस, 2, 3, 4, 5, एनी नंबर ऑफ एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पकड़ने का, रिप्रेजेंट्स व्हाट, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड। अभी सेकंड कंपोनेंट जो है, दैट इज व्हाट, ट्रायंगुलर लैमिना। ये राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना विल रिप्रेजेंट, ट्रायंगुलर लैमिना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना कुछ ऐसा आएगा, देखो, ये आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया नंबर 3। ठीक है, ये सबसे खतरनाक कंपोनेंट है, बहुत सिंपल एक्सप्लेन करूंगा तो, राइट। सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपको रॉन्ग आंसर देने का चांस मैक्सिमम है, इसलिए केयरफुली थोड़ा देखो। ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये जो डायमेंशन है, दिस वन इज व्हाट, ये है बेस बी, ये जो है दिस वन इज व्हाट, हाइट एच। अभी एक्चुअली व्हाट वी डिस्कस, जो रेक्टेंगल था ना, ऐसा देखो, मैं इधर रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसा 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 ऐसा, एंड ये हुआ कुछ ऐसा, राइट। रेक्टेंगल था तो आपका सेंट्रोइड सेंटर में आया था ना, ऐसा b/2 h/2। अभी क्या हुआ, ऐसा डायगोनल से एक ट्रायंगुलर पार्ट रिमूव किया था, आपका सेंट्रोइड इधर शिफ्ट होना चाहिए, ज्योमेट्रिक सेंटर पे रहता है सेंट्रोइड। पहले रेक्टेंगल का सेंटर इधर था, राइट, ट्रायंगल निकाला तो किधर आ जाएगा, थोड़ा लोअर साइड में आएगा। मीन्स पहले जो b/2 था ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, b/3, और ये h/2 था तो ये h/3 पे आएगा। मिस पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड कुछ इधर अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसा, तो पहले तो ये जो लाइन है
हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम सेंट्रॉइड, ये वर्टिकल लाइन फ्रॉम सेंट्रॉइड। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x बार, इसको क्या बोलने का, y बार। तो ये b है ना, तो ये आपका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ b एंड y बार इज व्हाट, 1/3 ऑफ हाइट। मीन्स x बार जो है ये रेक्टेंगल नहीं है, क्या है, ट्रायंगल। x बार क्या हो गया, इसका 1/3 b/3, y बार क्या हुआ, h/3। क्लियर। अभी ये b/3 है तो ये थोड़ी ना b/3 है, टोटल b होना चाहिए ना, ये b/3 है तो ये कितना होना चाहिए, 2/3 ऑफ बेस। ये अगर h/3 है तो ये कितना होना चाहिए, 2/3 ऑफ हाइट। अभी प्रॉब्लम आएगा को किधर से b/3 किधर से h/3 रहता है, तो ये पक्का ध्यान में रखने का। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला इधर है एंगल, मीन्स दीज टू साइड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स रहता है ट्राइंगल का, इधर से आपका b/3 एंड h/3 रहता है। मीन्स फॉर right angle triangular lamina, where is the position of centroid? For right angle triangular lamina, centroid is located at a distance of b/3 and h/3 from the two sides which are mutually perpendicular to each other. नोट करके ध्यान में रखने का इसके लिए, नहीं तो आपका गोची हो जाएगा when you solve problem. Wrong answer. गोची means what? Wrong answer आने का चांस है। अब बोलेंगे क्या सर गोची बोलते हैं आप, देखो नोट क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना, इन राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना centroid is located at distance of b/3 and h/3 from the two sides which are mutually perpendicular to each other। ये ध्यान में रखने का, बिकॉज व्हेनेवर एनी ट्रायंगुलर लैमिना इज गिवन, थोड़ा कंफ्यूज होने का चांस है। आप इसको ना जो परपेंडिकुलर साइड से वो पकड़ने का, उधर से b/3 एंड h/3 करने का। चलो एक इसका ट्रायल लेते हैं। हाँ, बी रेडी। ये y एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस। हाँ, अभी सपोज मेरा ट्रायंगुलर लैमिना कुछ ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये इधर का साइड आया वर्टिकल एंड ये बन गया ट्रायंगल। अभी इधर जो ट्रायंगल है ना, इसका 90 डिग्री वाला जो एंगल है, ये जो दोनों साइड है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई एक्सिस को कौन साइड हो रहा है, तो डायरेक्ट आया। अभी आपको डिस्टेंस किधर से मेजर करना है, एक्स एंड वाई एक्सिस से। चलो इसका बेस है हाउ मच, 9 मीटर, हाइट कितना है 6 मीटर, हाइट कितना है 6, बेस कितना है 9, बेस हो गया 9। और ये जो डिस्टेंस है ये कुछ है 2 मीटर एंड ये जो डिस्टेंस है ये है सपोज 3 मीटर, ठीक है। सबसे पहले तो तुम x बार y बार मेजर ही मत करो, आइडेंटिफाई टू साइड्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। विच टू साइड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये होगा आपका परपेंडिकुलर वाला। राइट एंगल ट्रायंगल देख लो तो पहले दो साइड्स पकड़ने का, राइट। अभी इधर से b/3 एंड हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायमेंशन h/3, मीन्स ये अगर आपका सेंट्रॉइड है तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा वर्टिकल है, मीन्स व्हाट h/3, एंड ये हॉरिजॉन्टल है, मीन्स व्हाट b/3। देखो ऐसे लिखा है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना सेंट्रॉइड इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ b/3 एंड h/3 फ्रॉम द टू साइड्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है, तो b/3 कितना हुआ
9/3 3 मीटर, h/3 कितना हुआ 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ 2 मीटर। ये तो 3 and 2 मीटर हो गया, बट ये आपका x बार y बार नहीं है। x बार y बार कैसा आएगा? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस, मीन्स ये सेंट्रॉइड है, इसको इधर खींचा, ये डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस। ये x बार है कि नहीं? करेक्ट ना? ये x बार नहीं है, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से रिप्रेजेंट करना है, वो x बार। अरे अभी तो प्रॉब्लम हुआ, ये साइड का डायमेंशन कितना है, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है भाई? 2 + 9, ये तो 9 + 2 मीन्स 11 मीटर पे है। पहले 11 मीटर इधर गए, उसमें से लेफ्ट में आए, कितना आया 3। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? 11 - 3, 11 से 3 गया, कितना हुआ 8 मीटर। ये समझ में आया कि नहीं? देखो इधर से 2 + 9 कितना हुआ 11, तो इधर से ये कितना हुआ 11। सेंट्रॉइड लेफ्ट में मीन्स 11 से कितना माइनस करेंगे 3, तो कितना हुआ 8। क्लियर? यस। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड मीन्स ये वाला, ये हो गया आपका y बार। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, अभी आपको ये डायमेंशन पता है कितना है 9, तो पहले ये साइड का डायमेंशन निकालो ना, कितना है, कितने हाइट पे है हॉरिजॉन्टल साइड? 3 + 6 ना, कितने डिस्टेंस पे है 9 मीटर पे है, एंड उधर से 2 मीटर पे आपका सेंट्रॉइड है, मीन्स ये कितना हुआ 7 मीटर। समझ में आया कि नहीं? पहले ये साइड का डिस्टेंस निकाला, 2 + 9 11, 11 से ये 3 माइनस किया, राइट। ऐसा ही पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का डिस्टेंस निकाला, हॉरिजॉन्टल साइड का डिस्टेंस निकाला, 3 + 6 हुआ 9, फिर नीचे आए 2 मीटर, तो 9 से 2 मीटर गया, कितना हुआ ये 7। करेक्ट? ऐसा भी कर सकते हैं, ये 3 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 + 2 8, ये कितना है टोटल 6, 6 में से ये 2 गया, तो इधर का कितना हो जाएगा 4, तो ये 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। क्लियर? तो कितना कंपोनेंट हुआ? 2 कंपोनेंट हुआ। और कितना कंपोनेंट डिस्कस करना है? और 5। विच वन? आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना, उसके बाद सर्कुलर लैमिना, उसके बाद सेमी सर्कुलर लैमिना, उसके बाद क्वार्टर सर्कुलर लैमिना एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये सब लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसके लिए we'll stop in this video now and we'll discuss in next lecture. Okay, thank you, bye bye, see you again.